داد قدم یاد کرتم عطایم داد قدم یاد خداوندا پاس ذل جلالی خداوندا پاس ذل میرا نام طاہرہ بانو ہے۔ میں سری نگر کشمیر میں رہتی ہوں۔ میں اپنی زندگی دو چیزوں کے سہارے جی رہی ہوں، ایک اللہ پر یقین اور دوسرا میرے بچوں کا پیار جن کے ساتھ میں رہتی ہوں۔ ان کی تعلیم، تربیت، اچھی صحت اور اچھی غذا میرا مقصد ہے۔ وہ آج بڑے ہیں، پڑھتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے اچھا کھاتے بھی ہیں، لیکن ہمیشہ ان کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ ایسے کئی دن اور راتیں تھیں جب ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، رہنے کے لیے گھر نہیں تھا۔ میں نے کئی ماؤں کی کہانیاں سنی تھی جب ان کو بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تو وہ چولہے پہ پانی کا برتن رکھ کے انہیں تسلی دیتی تھی ان کے لیے کھانا بن رہا ہے، اور اسی میں بچوں کو نیند آتی تھی۔ میں نے کئی بار خود اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کیا ہے، لیکن اب اللہ کا شکر ہے اب حالات بدل گئے۔ میں نے محنت کی، اب ہمارے پاس اچھا گھر بھی ہے اور ہمارے پاس اچھا کھانا بھی ہے۔ بڑا بڑا ہو جائے گا، کمائے گا، پھر اس کی شادی کریں گے۔ میں بولا ابھی یہ محنت کرے گا، ابھی قرضہ اتاریں گے، پہلے مکان کا قرضہ اترے گا، بینک کا لون ہے کچھ وہ اترے گا، اس کے بعد میں بارہمولہ کے ایک گاؤں پیرنیا میں پیدا ہوئی۔ 1996 میں میری شادی اسی گاؤں میں ہوئی۔ میں تب 22 سال کی تھی۔ میرے خاوند اچھے انسان تھے، میں ان کے ساتھ خوش تھی۔ ان کے ساتھ 8 سال میں نے خوشی سے گزارے۔ اب بس ان کی کچھ یادیں بسی ہیں۔ ان کے بغیر وقت بڑی مشکل سے گزرا، وہ ابھی بھی میرے دل و دماغ میں ہیں۔ وہ ابھی بھی میں ان کے کپڑوں میں محسوس کرتی ہوں، لگتا ہے وہ میرے ارد گرد ہی ہیں۔ ان کے لاپتہ ہونے کے بعد لوگوں نے دوسری شادی کا مشورہ دیا، لیکن میں نے نہیں مانا، صرف اپنے بچوں کے لیے۔ اور ایک چیز جو میرے ساتھ ہر وقت رہتی ہے وہ ہے ڈپریشن، دباؤ۔ پچھلے 15 سالوں سے نہ مجھے کوئی نیند ہے، نہ مجھے آرام ہے، نہ کوئی راحت ہے۔ اگر کبھی ہوتی بھی ہے وہ دوائیوں کے سہارے۔ یہ ڈپریشن عجیب چیز ہے، جب زندگی خراب ہو تو آپ اس سے نہیں بچ سکتے۔ انسان باہر سے کتنا ہی اپنے آپ کو سجائے، کتنا ہی خوش لگے، مگر اندر سے یہ ایسا ہے جیسے کہ دماغ میں 100 بم پھٹنے کے لیے تیار ہو، مگر آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ اسی لیے میں دوائی کو ترجیح دیتی ہوں، کیونکہ مقصد زندہ رہنا نہیں ہے بلکہ موت کو دور رکھنا ہے۔ میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے بچے ماں کے بغیر بھی زندگی گزاریں۔
1989 में जब लोगों ने यहाँ हिंदुस्तान के खिलाफ बंदूक उठाई तो उन्होंने यहाँ आर्मी को भेजा। दोनों तरफ गोलियां चली, हज़ारों लोग मारे गए, औरतें बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, बहुत से लोग लापता हो गए। कोई जेल में, कोई आर्मी कैंप में गायब हुआ, कोई घर से निकला तो वापस ही नहीं आया। मेरे खामन 2002 में एक दिन दिल्ली के लिए निकले, फिर वापस ही नहीं आए। दिल्ली में मालूम किया, फिर वहाँ नहीं पहुँचे थे। रिश्तेदारों के यहाँ ढूंढा, आर्मी कैंप और टार्चर सेंटरों में मालूम किया, कहीं पता नहीं चला। जिंदा है या गुजर गए कुछ पता ही नहीं है। इसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई और मुझे हाफिडो नीम बेवा का नाम पड़ा। उसके लापता होने के बाद मेरा राबिता जम्मू कश्मीर कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी से हुआ, जो एक ग्रुप है जो ह्यूमन राइट्स पे काम करती है। ये एक वकील परवेज अमरोज साहब ने शुरू किया। उन्होंने यहाँ लापता लोगों के रिश्तेदारों का एक ग्रुप बनाया था, APDP, जो लापता लोगों की बाजियाबी के लिए काम करती है। मैं भी इस ग्रुप में शामिल हुई और अब इसकी मैं स्पोक्स पर्सन भी हूँ। हमने यहाँ लापता लोगों की लिस्ट बनाई, उनके रिश्तेदारों को जमा किया। किसी का भाई खोया था, किसी का बेटा खोया था, किसी का खामद खोया था। हम हर महीने यहाँ जमा होते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं और बाहर प्रोटेस्ट करते हैं। हम एक दूसरे को समझाते हैं कि हमारा एक होना कितना ज़रूरी है। हम बिखर गए तो हम अपने खोए हुओं को भूल जाएंगे। वो जो खोए हैं हमें उनको देखना है कि वो कहाँ हैं। अगर खुदा ना करे उन कहीं जेलों में बांधे हैं तो वो हमें दिखाएंगे। अगर उनको कहीं मारा गया है, कहीं पे रखा है उनको, तो या जो इतने मास ग्रेज हैं इस वक्त वो दिखाएं, उनका DNA टेस्ट हो जाए, हमें ये पता चलेगा उनमें कौन से लोग हैं, है कि नहीं। इसलिए हमें मरते दम तक लड़ना है जब तक हमारे लोगों का पता नहीं चलेगा कि हमारे लोग कहाँ हैं। यहाँ तकरीबन 8000 लोग लापता हैं और 1500 हाफिडोज लेडीज हैं। हमने मिलकर यहाँ काम किया, किसी भी हुकूमत ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। पहले हम यहाँ पार्क में मिलते थे और बहुत सारे लोग आते थे। लेकिन कुछ सालों से हुकूमत ने किसी भी प्रोटेस्ट करने में बैन लगा दी। इसलिए हम थोड़े से ही लोग अब प्रेस कॉलोनी में प्रोटेस्ट करते हैं। मैं ये प्रोटेस्ट पिछले 15 सालों से करते आई हूँ, लेकिन हुकूमत पे कोई असर नहीं होता। मैं फिर भी ये करती हूँ और करती रहूँगी, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम अपने खोए हुओं को याद रखेंगे। कि जैसे हम बाहर UNO वाले लोग हैं, मतलब उनको जैसे कि वो अलग अलग काम कर रहे हैं, वो बाहर हर एक जगह जाते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी उनको भी एलो करने चाहिए, ताकि वो भी देखें यहाँ के हालात कैसे हो रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, और यहाँ पे इतने सारे लोग लापता हैं, उन पर कोई कदम नहीं उठा रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। हम चाहते हैं कि अब अगर उनको एलो करेंगे यहाँ पे। खामन के लापता होने के बाद उनके घर वालों ने मुझे घर से निकाला। मेरे बाप के पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं था। मैं बच्चों के साथ श्रीनगर आई, एक खामन की तलाश की जद्दोजहद में, और के कमाने के लिए ताकि बच्चों को खिला सकूं। लेकिन ये आसान नहीं था एक औरत के लिए। मैंने एक कमरा किराए पे लिया और सिलाई सेंटर का काम शुरू किया।
बच्चों को यतीम खाने भेज दिया ताकि वो उनको स्कूल भेजे। फिर मैंने इस ब्यूटी पार्लर पे काम शुरू किया। मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत की। कुछ साल पहले मैंने कर्जा लेके इसको खरीद लिया। शुक्र अल्लाह का कि मेरा यहाँ पे गुजारा होता है। ये काम भी अजीब है कि आप लोगों के चेहरों को यहाँ सजाते हो, लेकिन आपका दिल उजड़ा हुआ है। बच्चों की कल की सोच हमेशा के लिए मुझे काम करने के लिए मजबूर करती है। मैं उन्हीं के लिए मेहनत करती हूँ और हमेशा करूँगी। मैं उनको अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पाई, लेकिन एक चीज़ की खुशी है कि वो पढ़ रहे हैं। आज एक BA कर रहा है, वो दूसरा 11th में पढ़ रहा है। मैं चाहती हूँ कि हमेशा मैं उनके पास रहूँ और उनके साथ रहूँ। अब आप काम वाम छोड़ो, मैं खुद अब करूँगा काम। अभी तुम्हारी बारी कहाँ आई? अभी तू पढ़। अभी तुम्हारे पढ़ने का टाइम है। जब तू पढ़ेगा, जब टाइम आएगा मैं फिर खुद ही बोलूँगी आप जाओ आप काम पे। तो अभी मैं कर रही हूँ, जब मैं हार जाऊँगी फिर आप करोगे। Sehyu ka chumnai वफादार मोजी मेनिश्छु छाइलै संसार मोजी भन्दै सर पादन थाभोस नादान छकै पोष फैते फैते हलमदार मोजी मैंने वोच सही का वफादार मोजी। अगर जूते मंग हम पेशकश था भाई तत्ने करब इनका मोजी। अगर जूते मंग हम पेशकश था भाई तत्ने करब